Good morning dear students. Let's continue our chapter number 5, separation of substances. Till now we have discussed various methods to separate insoluble solids from a mixture. Today we will discuss separation of soluble solids from a mixture. Okay, for this first one is evaporation. What is evaporation? It is a name of process. Okay, the process of changing a liquid into its vapor on heating is called evaporation. Okay, evaporation क्या होता है? अगर आप किसी लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हो और इसके कारण वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेता है, लिक्विड फिजिकल स्टेट से गैसियस फिजिकल स्टेट में वो चला जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इवेपोरेशन. दैट मीन्स वो लिक्विड इवेपोरेट हो गया. ठीक है. नाउ the most common example of evaporation is to obtain salt from seawater. We know seawater contains lot of salts. Okay, so it is trapped in shallow ponds. What are shallow ponds? Shallow means shallow is opposite of deep. जो deep नहीं हो उनको हम क्या कहेंगे? shallow कहेंगे. ठीक है, तो these shallow ponds are called lagoons. Okay, minded, these shallow ponds are called lagoons. Remember the word lagoons. Okay, तो इन lagoons के अंदर सी वाटर को कलेक्ट करके रखा जाता है. ठीक है, अब क्या होगा? The heat of sun gradually evaporates the water completely, leaving behind the solid salts. सन से जो हमें हीट मिल रही है उसके कारण क्या होगा? पानी गर्म होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरीके से जब पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उन शैलो पॉन्ड्स में क्या बच जाएगा? सिर्फ सॉलिड सॉल्ट. ओके, नाउ दिस इज नॉट इन द कंडीशन टू यूज. ओके, तो इसको हम यूजेबल बनाने के लिए क्या करते हैं? और भी फर्दर प्योरिफिकेशन करते हैं. ठीक है, दिस मिक्सचर इज फर्दर प्योरिफाइड टू गेट common salt which we use. Okay, so students, let's do one activity which is given in your book, activity number 5. This is to separate common salt dissolved in water. Okay, you can do it at your home also. Let's see what you have to do for this. The things needed are common salt, water, a china dish, a Bunsen burner, a tripod stand and a wire gauge. Okay, now what you have to do for this? You have to make a mixture of common salt and water. You have to dissolve common salt, a teaspoonful of common salt in water, in the 50 ml of water. Dissolve it completely first. Then take this mixture in the china dish. Okay, for this activity you have to make this type of arrangement. Here it is a tripod. Okay, keep a Bunsen burner under this tripod. Okay, and place the wire gas on the tripod. Now take that mixture in the china dish and place it on this wire gas. Okay, so you will find this type of arrangement. Now what you will see after some time, when the solution absorb the heat from this Bunsen burner, then you will see that water starts evaporating. It starts converting into the steam. Okay, now after some time you will see that water is completely evaporated and you will find common salt is left behind in the china dish. Okay, that means हमने क्या किया? ट्राइपॉड स्टैंड लिया, उसके नीचे Bunsen burner जो है वो लगा दिया, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गेज रखा, उसके ऊपर एक चाइना डिश ली, उसके अंदर सॉल्यूशन लिया किसका? कॉमन सॉल्ट एंड वाटर का. ठीक है, अब ये सॉल्यूशन जब गर्म होगा तब क्या होगा? जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. थोड़ी देर बाद जब ये वाटर कंप्लीटली इवेपोरेटेड हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? चाइना डिश में सिर्फ कॉमन सॉल्ट. Okay, so in this way we can separate the soluble solid from a mixture using evaporation. So students, have you heard the word sublimation? Sublimation आपने सुना है? Actually this is the name of a process in which a solid converts into its vapor state directly.
without converting in the liquid state. That means solid जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी गैसियस फॉर्म में, उसकी वेपर फॉर्म में. जो मिडिल वाली फिजिकल स्टेट है, लिक्विड फिजिकल स्टेट, उसमें वो नहीं आ रहा है. तब हम इस चीज़ को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम पूजा करते हैं, कैम्फर यूज़ किया है, कपूर यूज़ किया है, ठीक है, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट उसकी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसकी लिक्विड फॉर्म में नहीं आता. सिमिलरली नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं जिनको हम वुलन्स में या कोई भी सामान अगर हमें इस तरीके से थोड़े टाइम के लिए पैक करके रखना होता है तो उसको इंसेक्ट्स वगैरह से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नैफ्थलीन बॉल्स डालते हैं. तो नैफ्थलीन बॉल्स क्या होते हैं, विंटर्स में तो जैसे फॉर एग्जांपल वुलन्स हैं, विंटर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप समर्स में उसको रख रहे हो तो समर्स में नैफ्थलीन बॉल्स हीट एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में कभी कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है. और उसकी जो वेपर फॉर्म है उसके कारण इंसेक्ट से आपके वुलन्स प्रिवेंट रहते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से सॉलिड स्टेट से कोई मैटर अगर डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो प्रोसीजर है इसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन. ओके. So students, our next topic is separation of a liquid from a mixture. Till now we have separated solids from a mixture. Okay, whether the mixture is in liquid state, whether the mixture is in solid state. Now we are separating a liquid from a mixture. So the first method is condensation. What is condensation? Condensation is the process of changing vapor into its liquid state on cooling. दैट मीन्स अगर हम किसी मैटर की वेपर फॉर्म को कूल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में. तो वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना बाय कूलिंग, इसी को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन. ओके. सो बाय दिस मेथड वी कैन गेट वाटर फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन. ओके. इस मेथड से हम वाटर भी ऑब्टेन कर सकते हैं सॉल्ट सोल्यूशन से. इन द प्रीवियस एक्टिविटी वी गेट सॉल्ट फ्रॉम द सोल्यूशन. By this method we can get water from the salt solution. Okay. Now the second one is distillation. What is distillation? It is the method of separation of pure liquid from the solution. इस मेथड के थ्रू हमें जो लिक्विड मिलेगा वो कौन सी फॉर्म में होगा, प्योर फॉर्म में होगा, ठीक है. सोल्यूशन इज हीटेड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हीट प्रोवाइड करते हैं, उसे गर्म करते हैं, ठीक है. वेपर ऑफ प्योर लिक्विड इज पास्ड इनटू लिबिक्स कंडेंसर कनेक्टेड टू डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म प्योर लिक्विड इन अनदर फ्लास्क. ओके. सबसे पहले आपने क्या किया, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर सोल्यूशन लिया, उसे गर्म किया. गर्म करोगे तो क्या होगा, जो लिक्विड फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर में. यानी यहां तक क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, ठीक है. अब इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क से क्या कनेक्टेड है हमारा, लिबिक्स कंडेंसर, ठीक है. तो ये जो लिक्विड से आपने वेपर बनाई है, ये जो प्योर फॉर्म है वेपर की, ये अब किस में जाएगी, उस कंडेंसर में, ठीक है. और उस कंडेंसर में जब हम उसको कूल करेंगे तब क्या होगा, कंडेंस होकर के मतलब वेपर से वो जब वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो हमें जो लिक्विड मिलेगा वो कौन सी फॉर्म में होगा, प्योर फॉर्म में, ठीक है. तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, इसी कंडेंसर से वापस एक फ्लास्क को कनेक्ट कर रखा है और वो जो फ्लास्क होगा उसके अंदर आपका प्योरेस्ट फॉर्म में लिक्विड कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है. दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है, पहले इवेपोरेशन हो रहा है, देन कंडेंसेशन हो रहा है. तो दोनों ही चीजें इसके अंदर इंक्लूड है. जो प्रीवियस टू मेथड्स हमने पढ़े, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये दोनों चीजें किसके अंदर इंक्लूड हो गई है, डिस्टिलेशन में. ओके. सो स्टूडेंट्स, देयर इज एन एक्टिविटी टू सेपरेट वाटर फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन. ओके. फॉर दिस एक्टिविटी यू नीड सम थिंग्स दैट आर कॉमन सॉल्ट, वाटर, kettle, a frying pan, a beaker, a Bunsen burner, a tripod stand, a wire gauge and ice cubes. Okay. So first of all you have to make the arrangements shown in the figure. Okay. सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके का अरेंजमेंट करना है. इसमें आपको क्या करना है, एक ट्राइपॉड लेना है, ठीक है. Place the wire gauge on the tripod and a Bunsen burner under this wire gauge. Okay. Then place a kettle on it and
मेक अ मिक्सचर ऑफ 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ओके, आपको पानी के अंदर 20 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व करके, कंप्लीटली डिजोल्व करके इस कैटल के अंदर रख देना है। ओके, देन व्हाट विल यू डू, यू विल लाइट दिस Bunsen burner. Okay, now take a frying pan and fill it with some ice cubes. इसके अंदर कुछ ice cubes आप इस तरीके से डाल दीजिए। इसको इस तरीके की स्लैंट पोजीशन में पकड़ के रखना है, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक बीकर होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, as soon as you light up this Bunsen burner, water gets start heating. Okay, एंड उसके बाद क्या होगा, जब ये हीट होगा तो ये अंदर ही अंदर बॉईल होने लगेगा। बॉईल होगा तो क्या होगा, जो अंदर का लिक्विड है, जो वाटर है, उसकी वेपर फॉर्म होगी। आपको क्या करना है, इसके ऊपर लिड लगा देनी है कैटल के ऊपर, ताकि ऊपर से पानी ना जाए, ठीक है। अब ये कहाँ से जाएगा, इस ओपनिंग के थ्रू बाहर वेपर आएगी। ये वेपर किससे टकराएगी, इस स्लैंट पोजीशन वाले फ्राइंग पैन से, ठीक है। जब ये वेपर इसे टकराएगी तो स्लैंट पोजीशन वाला जो फ्राइंग पैन है, इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होगा। वाई, बिकॉज इट हैज आइस क्यूब्स इन इट, इसके अंदर यहाँ आइस क्यूब्स है, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर बहुत कम होगा, जबकि ये तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी, ठीक है। जब ये इसे टकराएगी तो यहाँ पे क्या, कौन सा प्रोसीजर होगा, कंडेंसेशन। यहाँ तो क्या हुआ था, इवेपोरेशन, क्योंकि लिक्विड यानी कि वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, जो वेपर इसे टकरा रही है वो इसके साथ जा करके उसको क्या हो जाएगा, वो कूल हो जाएगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। तो वेपर वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो ये क्या हो जाता है, कंडेंसेशन, ठीक है। इससे ये जो पानी है ये धीरे धीरे इस बीकर में कलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये क्या था, हमने इसमें एक सोल्यूशन जो लिया था सॉल्ट और वाटर का, उससे वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, वाटर की प्योर फॉर्म एक्सट्रैक्ट कर ली है। इज इट ओके? How will you separate the immiscible liquids from a mixture? So let's discuss this, how to separate them out. Okay. For the separation of immiscible liquid from a mixture, we use separating funnel. Okay. Separating funnel is a device as shown in figure. It looks like this. Okay. Here it is a funnel. Okay, separating funnel. Here it is a stopcock. Okay, we can allow a liquid to pass through this funnel using this stopcock. Okay, by rotating it we can allow it, and by rotating it in the anti-clockwise direction we can stop flow of the liquid. Okay, now when two liquids are immiscible, यानी जो एक दूसरे में नहीं घुल पाते हैं, ठीक है, मिक्स नहीं हो पाते हैं, when two liquids are immiscible, they can be separated through this method using a separating funnel. For example, kerosene and water, these two are immiscible, they cannot mix in each other, so kerosene and water from their mixture can be separated by this process. How? Let's see. Mix kerosene and water and keep its mixture in this separating funnel. Okay, now there is a stopcock. First of all, remain this mixture undisturbed for some time. Okay, kerosene is lighter, so it forms a layer above the water. So we can see that these two components will be separated out. ओके, कैसे, आपको ऊपर जो लेयर दिखेगी वो तो किसकी होगी, केरोसिन की, और नीचे जो लेयर दिखेगी वो किसकी होगी, वाटर की, ठीक है। अब आप जेंटली इसको अगर मूव करेंगे तो यहाँ से धीरे धीरे करके जो वाटर है उसको आप इसके नीचे ड्रेन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही केरोसिन यहाँ आने लगेगा आप इसको फास्टली बंद कर दीजिए। जैसे ही केरोसिन नीचे आने लगेगा आप इसको बंद कर दीजिए, ठीक है, डू इट वेरी फास्ट। देन केरोसिन इसी सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा और इस बीकर के अंदर हमारे पास क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। इज इट ओके?